Welcome to Enlight Education video. I am Ankit Patel and today we are going to study about enzymes part 2. Right? So till now we have an introduction of enzyme, how they react with substrate, how they convert substrate into product, and what exactly enzymes are, how their function is, what is the importance of the enzyme, and how it is existing in our body. So we have studied about all these things, and now we are going to study about one more mechanism. Means one lock-in key hypothesis is there for enzymes mechanism of converting substrate into product, and one more hypothesis is there which is called induced fit hypothesis. Then we are going to study about factors affecting enzyme. Then we will study about different types of enzyme, that is classification of enzyme, and at last we will study about cofactors, coenzymes, and prosthetic groups, right? So let's start with induced fit hypothesis. We have studied about lock-in key hypothesis, in which padlock type of lock is there in which key get fitted, right? And this is forming. Now let's consider lock as substrate and key as an enzyme. When key get fitted with lock, it is forming enzyme substrate complex, and when key get twisted and opening the lock, it is forming enzyme product complex. And when this key get out from the lock and the lock is opened as well, right, then this open lock are product, and again key is an enzyme. Understood? So key will remain as it is, but it had converted substrate into product, it had opened the lock. So this kind of theory, lock-in key hypothesis is there. And in key teeth are there, right, which acts as active site which will convert substrate into product. One more hypothesis is there, it is called induced fit hypothesis. It is called induced fit hypothesis, right, in which an enzyme are having two sites, right? One is called buttressing site and another one is called catalytic site. Now I have taken a sock to explain what is induced fit hypothesis, right? Now let's consider this sock is having this shape. This sock is having this shape, right? And inside this portion means I'll take my hand as a substrate, right? And inside this portion means active site is present, right? Now this enzyme is present in this way. Now when this substrate will enter in this sock, in the hollow cavity of this enzyme, right, it will come in contact with buttressing group, right? It will come in contact with buttressing site, not group. It is also called as group. It will come in contact with buttressing group, right? Because of which there will be change in electrical cloud, which is present, which is formed due to presence of amino acids at different positions, right? Because of which lead to change conformation of this protein, of this enzyme, which will make enzyme to change its shape, to change its folding, and forming a hollow cavity at which catalytic site is present, that means active site is present, so that this substrate will go further more inside at the active site, right? It is depending on which kind of catalytic site is there. So now this enzyme, substrate have reached the active site, it will convert substrate into product, right? Now it is enzyme substrate complex, and now it have form product, right? Now the substrate have converted into product. So now this product is no more substrate, right? Now this substrate had converted into product, and now it is enzyme product complex. What it is? Enzyme product complex. Now if I take out this one, let's say enzyme and products are getting separated from each other, right? Enzyme and substrate are getting separated from each other. So now this is the enzyme which have regains its original position, buttressing group, and this catalytic group inside it, and now this substrate had converted into product. Understood? So this kind of thing is there in the induced fit hypothesis. Two groups are there, or two regions are there, two sites are there. One is called buttressing site and another one is called catalytic site, right? Catalytic site is nothing but active site where substrate can get converted into product. But
to change folding in a way that active site can come in contact with substrate, which doesn't occurs normally. Buttressing, buttressing site to buttressing site substrate have to reach, and which will make buttressing site to change certain conditions within the enzyme, because of which there will be change in foldings in conformation of enzyme, as enzyme is chemically protein. So here conformation change will occur, which lead to substrate reach to the active site. Substrate comes in physical contact of active site of the enzyme. Understood? And that's how reaction is occurring. So this is induced fit hypothesis. Understood? Now let's study about factors affecting enzymes. We have already discussed about two factors that are affecting enzymes. One is temperature and another one is pH, right? Now let's study about what is temperature. Let's recall what we have studied about temperature, right? Every enzyme have the optimum range of temperature to work most efficiently, right? We have discussed that with change in every 10 degrees Celsius, efficiency of enzyme get increase or decrease. I mean, if it gets increased, it will get doubled, or if it get decreased, it will get half. Understood? So in this way, activity of enzymes get differ with increase or decrease in temperature, right? They are very specific to what kind of temperature they are most active in. Understood? That's why our body have 37 degrees Celsius temperature. Just look at the birds and mammals, animals. They are able to maintain their temperature. That's why they can. They don't have long winter sleep. They don't have long summer sleep. Right? Look at the dogs, cat, elephant, horse. Right? These animals are not having long winter sleep or summer sleep. Even us also. Understood? But animals like frogs, salamander, and other animals which belongs to this amphibians, they need this long winter sleep or summer sleep. Why? Because they doesn't have homeostasis, right? They are not able to maintain their body temperature, right? So their enzymes become less active. That means their metabolic rate gets slower, and that's what makes them having long sleep. Understood? So this is how temperature factor is affecting enzyme. Okay. Now, if you look at the graph of how temperature is affecting enzyme activity, you can see that at optimal range, maximum efficiency of enzyme is been exhibited, right? So there is a peak of enzyme activity at optimal range of temperature. If we decrease temperature, then enzyme get less active, or function of enzyme get paused. But if we increase temperature up to much higher content, then enzyme will loses its activity. Means here, see, enzymes are chemically protein, right? So at much higher temperature, this protein molecules get denatured permanently. So they are no more enzymes. They don't have any enzymatic activity anymore, right? So this these chemicals get dysfunctional permanently if temperature gets much higher. Understood? Now coming to the next is pH. First of all, I would like to discuss what is pH. pH is nothing but negative logarithm of concentration of H plus ion. क्या है ये? चलो बहुत इंग्लिश बोल दिया है ना, आप लोग अभी सोच रहे हो कि ये सर इंग्लिश में चालू हो गए, ठीक है? तो pH क्या है? It is nothing but negative logarithm of H plus concentration, ठीक है? हाइड्रोजन आयन, ठीक है? हाइड्रोजन एटम नहीं लेंगे, हाइड्रोजन आयन लेते हैं तो सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, ठीक है? तो प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कोई भी एक सॉल्यूशन में प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज्यादा है या कितना कम है, दैट इज डिटरमाइनिंग पीएच ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. अंडरस्टूड? तो अगर तो एंजाइम्स में भी ऐसा है कि लाइक टेम्परेचर, एंजाइम्स आर वेरी मच सेंसिटिव टू पीएच, राइट? तो उनका एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ पीएच होता है, उनमें वही पीएच में दे आर मोस्ट फंक्शनल. अंडरस्टूड? विद डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंक्रीज इन पीएच और डिक्रीज इन पीएच, they will lose their efficiency, right? Enzymes will lose their efficiency. तो इतने अच्छे से एक्टिवली काम नहीं कर पाएगा, ठीक है? So they require pH. आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 10th स्टैंडर्ड में, मालूम है कि in our stomach dilute HCl is there which makes
inactive pepsinogen into which converts inactive pepsinogen into active pepsin. तो ये एक्टिव कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ हायर लेसर पीएच, एसिडिक पीएच हो गया, तो पीएच घट गया काफी, तो इसकी वजह से जो इनएक्टिव पेप्सिनोजन था वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया. नाउ इट इज एक्टिवेटेड, नाउ इट वर्क्स मोस्ट एफिशिएंटली. ये पेप्सिन एंजाइम सबसे एफिशिएंटली वर्क करेगा हमारे स्टमक में ड्यू टू पीएच रिड्यूस बाय डायल्यूट HCl. ठीक है, तो दिस अबाउट. और हाँ, हमारे लीवर में से भी अल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट होता है, ग्रीन शेल अल्कलाइन फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड बाइल जूस. अंडरस्टूड? तो ये बाइल जूस की वजह से हमारे बॉडी में देखो इंटेस्टाइन में फिर अल्कलाइन पीएच हो जाता है. ठीक है, जिसमें ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है. ठीक है, ट्रिप्सिनोजेन गेट एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन, और ये ट्रिप्सिन एक्टिवेटेड रहता है. इट विल वर्क मोस्ट एफिशिएंटली इन स्लाइटली हायर पीएच. ठीक है, विच इज ब्रिंग अबाउट बाय बाइल जूस. अंडरस्टूड? तो एंजाइम्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू व्हाट काइंड ऑफ पीएच दे रिक्वायर to work most efficiently. Now let's study about how how concentration of solute is affecting this enzyme activity. ठीक है, हम लोग ने देखा ना कैसे टेम्परेचर और पीएच करता है. ठीक है, one more factor is there which is affecting enzyme activity, that is solutes concentration. Understood? अब ये solute concentration कैसा है? तो ऑब्वियस है, सॉलिड का कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ये तो नॉर्मल चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. ठीक है, व्हेन वी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, व्हेन वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, देन एंजाइम एक्टिविटी विल गेट इंक्रीज. ठीक है, तो यहां पर एक ग्राफ भी है कि अगर हम सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते तो इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज वेरी रैपिडली. ठीक है, इनिशियली बहुत जल्दी से बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन. अंडरस्टूड? मतलब स्पीड होता है ना रिएक्शन का, वो एक्सिलरेट होगा बहुत अच्छे से. अंडरस्टूड? फिर क्या होगा? ये एक्सिलरेशन जो है ना धीमा पड़ जाएगा. अंडरस्टूड? मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी पहले आपने स्टार्ट की तो सीधा 2 सेकंड में 25-50 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर, फिर जैसे 100 किलोमीटर पर आवर में पहुंचे ना, फिर 10 सेकंड में आप 100 से 110 में जा रहे हो, दूसरे 10 सेकंड में आप 110 से 115 में जा रहे हो. ठीक है, तो आपकी स्पीड कम होती जाएगी. तो पहले क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन एकदम फास्ट इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो तो वैसे स्पीड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ रिएक्शन का जो इंक्रीज, उसका रेट ऑफ रिएक्शन का जो इंक्रीज होना है वो धीरा होता जा रहा है. ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन स्लो हो रहा है. अंडरस्टूड? एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन बोलूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. तो आप यहाँ पर जो ग्राफ देख रहे हो, यहाँ पर ग्राफ में क्या है देखो, एक्स एक्सिस में हम लोग ने क्या लिया है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम लोग ने लिया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन रेट ऑफ रिएक्शन, मींस वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्राफ देखें तो ग्राफ कर्व है. ये ग्राफ कर्व होना मतलब क्या दिखा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इनिशियली तो बहुत अच्छे से इंक्रीज होगा. ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अरे वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी एकदम से बढ़ गया. ठीक है, फिर क्या कर देंगे हम लोग, डालते जाएंगे सॉलिड ऐड करते जाएंगे, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का जो इंक्रीज होना है, ठीक है, वो स्लो पड़ जाएगा. इंक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन विल गेट स्लो. अंडरस्टूड? तो पहले एकदम अच्छे से बढ़ रहा है, अब देखो कर्व ऐसा हो गया है ना, पहले ऐसा था अब ऐसा है. अंडरस्टूड? तो अब क्या है, ज्यादा कंसंट्रेशन डालते हैं, ज्यादा सॉलिड डालते हैं तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा है ना. पहले क्या था कि पहले 2 सेकंड में सीधा 0 to 25 फिर 50. अब क्या है, अब 10 सेकंड में 100 to 110, और फिर दूसरे 10 सेकंड में तो उससे भी खराब 110 से 115. अंडरस्टूड? तो इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से बढ़ता है. अंडरस्टूड? दिस इज नेचर. और देखो यहाँ पर देखो कि एक मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, फिर उससे ज्यादा जितना भी सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन डालो उससे ज्यादा वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा. मतलब गाड़ी में भी ऐसा होता है ना कि दिस इज मैक्सिमम स्पीड से नहीं बढ़ेगा. तो यहाँ पर भी यही चीज है. अंडरस्टूड? मैक्सिमम वेलोसिटी होता है जिसको बोलते हैं Vmax. इट इज कॉल्ड Vmax. We cannot increase velocity, rate of reaction than Vmax. Understood? और Vmax का जो हाफ स्पीड है उसको हम लोग बोलेंगे, हाफ रेट ऑफ रिएक्शन है उसको बोलेंगे Vmax by 2. Isn't it? Suppose Vmax है यूनिट, तो मैं नहीं, चलो यूनिट बोल के ही बोल देता हूँ. Vmax जो है मतलब नॉट एग्जैक्टली यूनिट,
Vmax जो है हमारा 10 यूनिट्स है, Vmax है हमारा 10 यूनिट्स, तो Vmax by 2 कितना हो जाएगा 5 यूनिट्स। अंडरस्टूड? तो ये समझ में आया, Vmax समझ में आया, Vmax by 2 समझ में आया। और एक यहाँ पर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, तो ये भी चीज हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक टर्म आप देख रहे हो, दैट इज Km, है ना, K फिर M सबस्क्रिप्ट में। अंडरस्टूड? तो ये Km क्या है? Km इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। देखो ये अभी लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप इनहिबिटर्स पढ़ोगे ना, आप आगे इनहिबिटर्स पढ़ोगे, ठीक है, जब आप इनहिबिटर्स पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि Km कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Km क्या है? Km इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। Km is concentration of solute to attain half of the maximum rate of reaction. To attain half of the maximum rate of reaction. मतलब जो maximum rate of reaction है उसका हाफ तक अगर रेट ऑफ रिएक्शन को पहुंचाना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ हाफ रेट ऑफ रिएक्शन तक, हाफ ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन तक ही पहुंचाना है, तो उसके लिए सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना चाहिए? दैट इज कॉल्ड Km. दैट इज कॉल्ड Km. Understood? And this Km is nothing but Michaelis constant. ये Michaelis साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ढूंढा था. That's why this constant is called Michaelis constant. Understood? It is called Km. And what is Km? It is concentration of solute required to attain half of the maximum rate of reaction. Half of the maximum rate of reaction. मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जितना है उसका हाफ तक रेट ऑफ रिएक्शन पहुंचाना है, तो हमें कुछ सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, एंड दैट अमाउंट ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड Km, Michaelis कांस्टेंट। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर Vmax और Km समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्राफ में। तो आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। आप होप नहीं, आपको समझना ही है, ठीक है। नहीं समझे तो फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देख लो, सुन लो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर्स। अंडरस्टूड? अगर इनहिबिटर्स है तो ऑब्वियसली एंजाइम्स जो है उनका फंक्शन घट जाएगा, ठीक है। लेकिन इनहिबिटर कैसे घटेगा वो समझने के लिए हम लोग को समझना पड़ेगा कि इनहिबिटर्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स, मतलब जिस तरीके का इनहिबिटर्स है उस तरीके से फंक्शन ऑफ एंजाइम गेट लेसर। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले देख लेते हैं, चलो दो टाइप के इनहिबिटर्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू व्हाट काइंड ऑफ लॉस दे आर मेकिंग, वेदर द लॉस इज टेम्पररी लॉस और परमानेंट लॉस। अंडरस्टूड? तो कुछ इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल व्हेन इनहिबिटर्स गेट बाइंड विद एंजाइम, व्हेन इनहिबिटर्स ये होते हैं जो एंजाइम से बाइंड हो जाते हैं एंड दे डोंट लेट एंजाइम टू गेट कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। ये इनहिबिटर्स एक बार एंजाइम के साथ बाइंड कर जाते हैं, फिर एंजाइम को अपना मैकेनिज्म, अपना एक्टिविटी नहीं करने देते, ठीक है। दे डोंट लेट, दिस इनहिबिटर डोंट लेट एंजाइम टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? तो ये काम होता है इनहिबिटर्स का। अंडरस्टूड? अब देखो, अगर रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है तो क्या है कि इनहिबिटर्स और एंजाइम्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए, ठीक है। नाउ दिस इनहिबिटर विल नॉट लेट एंजाइम टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। अंडरस्टूड? लेकिन अगर हम लोग वाटर इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है, इफ वी डाइल्यूट दिस, तो यहाँ पर देखो डाइल्यूट करने से क्या होगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है इनहिबिटर्स का काफी कम हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये इनहिबिटर्स विल आल्सो गेट डिसोसिएट, तो ये डिसोसिएट भी होगी, एसोसिएट होगी। जब ये डिसोसिएट हो रहे हैं उस दौरान सबस्ट्रेट कैन बाइंड विद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय एंजाइम। अंडरस्टूड? तो ये होता है रिवर्सिबल एंजाइम, जब रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है, ठीक है। और दूसरा होता है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या है? मतलब एक बार बाइंड कर गए एंजाइम से, नाउ दे विल नॉट लीव द एंजाइम। अभी वो एंजाइम को छोड़ेंगे नहीं, एंजाइम को पकड़ के रखेंगे, ठीक है। और ये परमानेंट लॉस करेंगे एंजाइम्स का, ठीक है। इवन हम लोग इसको डाइल्यूट करते हैं तो भी ये इनहिबिटर्स, दिस इनहिबिटर्स विल नॉट गेट डिसोसिएट और सेपरेटेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एंजाइम्स। और देखो एंजाइम्स और के इनहिबिटर्स भी रेस्पेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी इनहिबिटर आके कोई भी एंजाइम के साथ बाइंड कर जाए, ऐसा नहीं होता। एंड ऑलवेज दिस इज ऑलवेज के इनहिबिटर्स आर रेस्पेक्टिव टू देयर एंजाइम्स, कि कोई जो इनहिबिटर है वो अपना स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही बाइंडिंग करेगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल ये लेते हैं कि एक हम लोग जब इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो इंसेक्टिसाइड में एक इनहिबिटर होता है which get binds with acetylcholine esterase enzyme, which can bind with
acetylcholine esterase enzyme. This is an enzyme which is required to break down neurotransmitter acetylcholine. ठीक है, अब ये neurotransmitter acetylcholine क्या है, ये सब हम लोग 21 चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, जब हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे उसमें एसिटाइलकोलिन आएगा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, क्या फंक्शन है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. वहां पर भी ये एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम आएगा. ठीक है, तो अभी इतना याद रख लो कि इंसेक्टिसाइड्स में कुछ इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं जिसमें एसिटाइलकोलिन एस्टरेज नाम के एंजाइम का इनहिबिटर होता है. Understood? Now, if this inhibitor bind with acetylcholine esterase, it will not let acetylcholine esterase enzyme to convert acetylcholine into acetic acid and choline. Understood? तो ये acetylcholine को acetic acid और choline में break down नहीं करने देगा. ठीक है? So this is an inhibitor which is preventing in function of acetylcholine esterase. अंडरस्टूड? ये इरिवर्सिबल टाइप का इनहिबिटर है. एक बार बाइंड हो गया फिर ये एंजाइम खत्म, ये एंजाइम मॉलिक्यूल हो गया डिसफंक्शनल परमानेंटली. अंडरस्टूड? तो इसको फिर भूल जाना है. तो यहां से इस तरीके से इसमें न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इंसेक्ट्स में और इंसेक्ट्स बेचारे मर जाते हैं. अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ इंसेक्टिसाइड्स, दिस इज हाउ वी कैन यूज इनहिबिटर्स, राइट? वी कैन अप्लाई इनहिबिटर्स फॉर किलिंग सच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. कितने गंदे हैं हम लोग, इजंट इट? चलो और दूसरा फिर देख लेते हैं. और भी दो टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे हम लोग ने एक पढ़ा ना कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, राइट? ऐसे और दो टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं. एक है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और दूसरा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. ठीक, चलो फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ये है कि देखो यहां पर ऐसा होता है कि इनहिबिटर्स एंड सबस्ट्रेट are binding to the same active site of the enzyme. Same active site तो नहीं बोलेंगे लेकिन same site to the enzyme. ठीक है, देखो सबस्ट्रेट कहां पर बाइंड होता है एंजाइम के एक्टिव साइट पर ही सबस्ट्रेट बाइंड होता है और वही एक्टिव साइट पे इनहिबिटर्स भी बाइंड होते हैं. अंडरस्टूड? मतलब ऐसा है कि देखो इनहिबिटर्स और सबस्ट्रेट यहां पर एक्टिव साइट में बाइंड होने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, है ना, कि भाई कौन बाइंड होगा कौन नहीं होगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड, this kind of competitors, this kind of inhibitors are called competitive inhibitors. और जब inhibitors एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद एंजाइम. अंडरस्टूड? तो ये प्रॉब्लम हो जाता है जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं तब. अंडरस्टूड? अब देखो क्या होता है कि अगर इसे टैकल करना है, इफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर देयर एंड स्टिल वी वांट टू गेट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा ऐड करना पड़ेगा. अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इनहिबिटर्स के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि देखो इनहिबिटर्स जितने एफिशिएंसी बाइंड हो रहे हैं ना उससे ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होंगे. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और इनहिबिटर्स का कॉन्सेंट्रेशन काफी कम है सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से. तो ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड होंगे, सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट से ज्यादा, एंजाइम के एक्टिव साइट से ज्यादा सबस्ट्रेट बाइंड होंगे, ना कि इनहिबिटर्स होंगे, लेकिन इनहिबिटर्स का एफिशिएंसी कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेंट्रेशन कम है. ठीक है, तो सबस्ट्रेट और इनहिबिटर्स के कंपटीशन में जीतेगा कौन? सबस्ट्रेट. क्यों? क्योंकि सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. देयर विल बी मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट, मच मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट देन द इनहिबिटर्स. और देखो ये सबस्ट्रेट, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो Vmax तक पहुंच पाएगा. ठीक है, जो इनहिबिटर्स के बिना जो Vmax है ना उतना ही Vmax विद इनहिबिटर्स भी पॉसिबल है, लेकिन ऑब्वियसली सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा देना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो यहां पर Vmax के लिए बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट का, तो Vmax/2 के लिए भी Vmax/2 वाला रेट ऑफ रिएक्शन पहुंचने, वो रेट ऑफ रिएक्शन तक पहुंचने के लिए भी सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हमें बहुत ज्यादा चाहिए. अंडरस्टूड? तो यहां पर Km का वैल्यू बढ़ जाता है. अंडरस्टूड? व्हाट इज Km? concentration of solute. It is concentration of solute required to attain half of the rate of maximum rate of reaction. To attain half of the maximum rate of reaction. ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें जो concentration of substrate चाहिए ये भी यहां पर बढ़ जाएगा. मतलब here Km is increased as you can see in the graph. आप ग्राफ में देख पा रहे हो कि यहां पर Km ऑलमोस्ट, ग्राफ में तो ऐसा दिख रहा है कि Km ऑलमोस्ट डबल हो गया. ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन concentration of substrate, depending on concentration of inhibitors, enzymes, सब कुछ मिला के अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं कि Km increase हो जाएगा. Km will increase means there will be more, we need to increase more concentration of substrate, right,
to achieve to attain half of the maximum rate of reaction. ठीक है, तो यहाँ पर Km ज्यादा है, यहाँ पर requirement of this concentration of substrate ज्यादा है. Understood? So this about competitive inhibitors. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चलो competitive inhibitors का. बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं, दिस बैक्टीरियल सेल्स अपने में फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B7, ठीक है, B7 दैट इज फॉलिक एसिड, ये बैक्टीरिया जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं. ठीक है, बहुत कम एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत कम कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब कर पाते हैं. तो उनको B7 अपने सेल्स के अंदर बनाना पड़ता है. दे हैव टू मेक B7 दैट इज फॉलिक एसिड इनसाइड देयर सेल. तो ये बनाने के लिए सबस्ट्रेट जो होता है दैट इज कॉल्ड पावा इन शॉर्ट, मतलब पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड. अंडरस्टूड? तो ये पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड सबस्ट्रेट होता है जिससे बनता है B7 फॉलिक एसिड. तो ये जो एंजाइम है, जो एंजाइम के साथ ये पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड बाइंड करेगा, उसके एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा. अगर हम लोग यहाँ पर सल्फानिलामाइड अगर यूज करते हैं, सल्फानिलामाइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फा ड्रग्स, तो यहाँ पर सल्फानिलामाइड हम लोग अगर यूज करेंगे तो सल्फानिलामाइड क्या करेगा, ये एज बीइंग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इट विल बाइंड विद द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. अंडरस्टूड? मेकिंग एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम ऑक्यूपाइड, अनअवेलेबल फॉर द सबस्ट्रेट. तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरियल सेल है, वो बैक्टीरियल सेल में जो एंजाइम है जिसमें इनहिबिटर्स बाइंड कर गए हैं, सल्फा ड्रग्स वाले सल्फानिलामाइड के साथ बाइंड हो गया है, तो पैरा बेंजोइक एसिड जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा. और पैरा बेंजोइक एसिड एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगा तो वो फॉलिक एसिड मतलब विटामिन B7 नहीं बना पाएगा. तो बैक्टीरियल सेल कैन गेट किल्ड बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ ड्रग्स. अंडरस्टूड? सल्फानिलामाइड यूज करके ऐसे बैक्टीरियल सेल्स को हम लोग किल कर सकते हैं. Understood? It will get denourished, it will get devoid of nutrition, and because of this devoid of nutrition, it will die. Understood? Bacterial cell will die. तो इस तरीके से सल्फर ड्रग्स कैन बी यूज. और एक है कि चलो हम लोग जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भाई एक एंजाइम है which is called succinic dehydrogenase, Understood? This succinic acid converts, this succinic dehydrogenase convert succinic acid into fumaric acid. It converts succinic acid into fumaric acid. लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर और एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है which is called मैलिक एसिड. अंडरस्टूड? which is called मैलिक एसिड. ठीक है, सक्सिनेट. तो ये मैलिक एसिड जो होता है वो सक्सिनेट का जैसा ही होता है. अंडरस्टूड? थोड़ा सा डिफरेंस होता है. This malic acid will bind with active site of enzyme, making enzyme succinic dehydrogenase unavailable, or active site of enzyme succinic dehydrogenase unavailable for the succinic acid. Understood? जिसके वजह से succinic acid का further fumaric acid में conversion नहीं होगा. तो इस तरीके से competitive inhibitors अपने substrate को product में convert करने से रोकता है. Understood? Enzyme activity को reduce करता है, stop करता है. Understood? It prevents, stop नहीं करता, but it prevents letting this reaction to occur. Understood? So this are competitive inhibitors. अभी बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैसे होते हैं? तो दिस इनहिबिटर्स आर एक्चुअली नॉट बाइंडिंग विद एक्टिव साइट, बट दे आर बाइंडिंग विद सम अदर साइट ऑफ द सेम एंजाइम. ठीक है, एंड मेकिंग एंजाइम एंड कन्वर्टिंग एंजाइम इन सच अ वे that it will not remain functional. ठीक है, तो ये क्या करेंगे इनहिबिटर्स, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो क्या करेंगे, एंजाइम्स का एक्टिव साइट छोड़ के और कहीं पर बाइंड हो जाएंगे और ये एंजाइम्स को कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसका कन्फर्मेशन चेंज कर देंगे या फोल्डिंग चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से ये एंजाइम अभी डिसफंक्शनल हो जाएगा. अंडरस्टूड? अगर देखो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ऑलरेडी बाइंड हो चुका है और इनहिबिटर आके बाइंड हुआ है, then enzyme substrate complex cannot get converted into enzyme product complex. Understood? तो फिर प्रोडक्ट अलग से प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन रहा है तो प्रोडक्ट बन के फिर सेपरेट भी नहीं होगा, डिसोसिएट भी नहीं होगा एंजाइम से. ठीक है, और क्या नहीं तो और क्या करेगा कि इट विल नॉट अलाउ एंजाइम टू गेट बाइंड विद सबस्ट्रेट. ठीक है, एक एंजाइम है उस पे इनहिबिटर बाइंड हो गया तो एक्टिव साइट जो है वहां पर सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं कर पाएगा. अंडरस्टूड? इट विल ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन एंजाइम सो दैट एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कैनॉट बाइंड विद सबस्ट्रेट. अंडरस्टूड? तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है, इनका फंक्शन ऐसा होता है. ठीक है, इट कन्वर्ट्स
it changes enzyme in such a way that it will not be able to bind with substrate, or if it got bind, it will not let enzyme substrate complex to get converted to enzyme product complex. अंडरस्टूड। तो चलो फिर यहाँ पर ग्राफिकली भी एक बार देख लेते हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में देखा था वैसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग ग्राफ देखें, अंडरस्टूड, इफ वी सी ग्राफ इन हियर, तो देखो यहाँ पर कुछ एंजाइम के साथ इनहिबिटर्स बाइंड हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम मॉलिक्यूल्स अनअवेलेबल हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मच इनहिबिटर्स आर देयर। तो यहाँ पर क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी, आई मीन मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन तो कभी भी अटेन नहीं होगा। जो इनहिबिटर्स के बिना मैक्सिमम वेलोसिटी था, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन था, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के साथ वो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब वो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन तक हम लोग कभी नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन Vmax जो है वो काफी रिड्यूस हो गया, यू कैन सी इन द ग्राफ, राइट, दैट इज रिड्यूस टू हायर कंटेंट, मच ऑफ द हायर कंटेंट, मतलब बहुत कम हो गया, लेसर हो गया, ठीक है। Vmax got much lesser, understood। तो यहाँ पर देखो Vmax ही कम हो गया है, अंडरस्टूड। और दूसरी चीज और एक देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर देखो इनहिबिटर्स जो है, दे आर नॉट बाइंडिंग विद द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, अंडरस्टूड, दे आर नॉट बाइंडिंग विद द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। यहाँ पर एक्टिव साइड तो सबस्ट्रेट के लिए अवेलेबल है ही, फिर भले वो कॉम्प्लेक्स ना बना रहा हो या फिर बन गया तो प्रोडक्ट ना बना रहा हो सबस्ट्रेट का, ठीक है, लेकिन एक्टिव साइट तो अवेलेबल है ही, तो Kmax उतना ही रहेगा, अंडरस्टूड। Kmax यू कैन सी इन द ग्राफ, Kmax हैज नॉट चेंज्ड, अंडरस्टूड। तो अभी और एक रीजन भी क्या है कि भाई अभी Vmax ही कम हो गया है, तो ये नया Vmax के हिसाब से Km भी उतना का उतना ही रहेगा, अंडरस्टूड। एज Vmax हैज रिड्यूस्ड, अब ग्राफ में देखो, ग्राफ में आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कम हो गया है, अंडरस्टूड, मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो गया, तो Vmax by 2 भी कम हो जाएगा। यू कैन सी इन द स्लोप कि यहाँ पर देखो Vmax ही कम हो गया है, ठीक है, तो Vmax by 2 भी कम हो जाएगा, और उतना Vmax में तो Vmax by 2 में तो Km उतना का उतना ही रहेगा, isn't it? तो यहाँ पर इन दिस रिएक्शन, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिटर्स, आपको ये याद रखना है, इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स Km remain unchanged while Vmax get changed, Vmax get reduced। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स है तो Km यहां पर इंक्रीज हो जाता है और Vmax उतना का उतना ही रहता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स एज इट इज, बट ऑब्वियसली Kmax रिमेन्स सेम, अंडरस्टूड। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में एक्चुअली होता क्या है कि आप सबस्ट्रेट जिस तरीके से ऐड करने वाले हो उसी तरीके से ऐड करना है आपको, लेकिन यहां पर वेलोसिटी जो है वो हर कॉन्सेंट्रेशन, हर सबसे, मतलब आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन लो उसमें आपको वेलोसिटी तो कम ही मिलेगा, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर Vmax जो है दैट इज आल्सो रिड्यूस्ड, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। सो अभी हम लोग ने इनहिबिटर्स पढ़ लिया है, ठीक है, वी हैव स्टडीड अबाउट